Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence. So in this lecture, I will be discussing a new topic, that is contemporary developments. So what are the contemporary developments after the independence? Okay, so we'll categorize this topic into three parts, okay, three subheads. Okay, so let's start the topic. Contemporary developments. Okay, now the contemporary developments, is that clear to you all? इसमें जो हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो है पॉलिटिक्स ऑफ कोलिशन. पॉलिटिक्स ऑफ कोलिशन कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सारी चीजें. ओके, दूसरी चीज जो हमें कंटेम्पररी डेवलपमेंट में पढ़ना है, ओके, वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. पोस्ट इंडिपेंडेंस के फॉर्म में देखेंगे, इकोनॉमिक से फॉर्म में नहीं देखना है, ठीक है. इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. okay, second category. Okay, now the third thing which we need to discuss, that is era of ICT, information communication and technology. ये तीन है contemporary developments. Okay, so first we'll start with politics of coalition. Okay, let's start this topic. Politics of coalition. Now the coalition politics, अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारी चीजें हम समझेंगे. ओके, मैंने आपको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में बताया भी था, पढ़ाया भी था कि कैसे पहला इलेक्शन इतना बड़े लेवल पे होता है इंडिया में 1951 में. ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज always contested elections in our country. Okay, as we have seen in the previous topic, that is from colony to democracy, where I have discussed with you that electoral politics. Okay, so after the independence, first we'll divide this phases like this. First, after the independence from 1947 till 1969, first phase. Okay, now इस फेज में क्या हुआ? So in the initial years, the Congress party gained overwhelming majority. Initial phase में तो कांग्रेस पार्टी क्या थी, एक one nation one party वाला सिस्टम था, single party, largest party. Okay, so Congress party gained overwhelming majority and the Congress party commanded popularity and respect of people. नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस को बहुत रेस्पेक्ट मिलती थी और इवन ऑपोजिशन भी रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि नेहरू की जो लीडरशिप थी, जो नेतृत्व था, वो ऐसा था, सभी उनकी कैबिनेट में उनके ऑपोजिशन मिनिस्टर्स होते थे. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. सो नेहरू का बेसिकली फोकस होता था स्पेशलाइजेशन पे. जैसे अंबेडकर जी लॉ में थे तो उनको क्या बनाया गया, लॉ मिनिस्टर. ओके, ये याद रखिएगा. सो इन द इनिशियल फेज द कांग्रेस पार्टी हैड मास बेस एंड ग्रास रूट्स इन इंडिया. ओके, एंड कांग्रेस पार्टी, it remained in power both at center and state from 1947 till 1967. okay, 1969 में फिर से इलेक्शंस होते हैं. ओके, तो उस पीरियड के बीच में जब शास्त्री जी चले जाते हैं, उसमें इंदिरा गांधी संभालती हैं, फिर इलेक्शंस होते हैं, तब आती है 1969 में इंदिरा गांधी. ओके, सो 1967 तक मास बेस सब किसका होता है, कांग्रेस का. ओके, but after 1967, that is after the death of Lal Bahadur Shastri, emergence of strong regional parties. अब second phase आ जाएगा किस चीज का, emergence of strong regional parties. Is that clear to you all? Now the emergence of strong regional parties आ जाएंगी. Communist Party of India. Okay, politicization of various social groups.
okay, and their struggle for share in power, and it categorized and characterized in the political transition. ओके तो आज आप देखें अगर कंटेम्पररी इंडिया, तो देयर आर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, दे वांट देयर शेयर इन पावर, दे characterize the political transition and churning in contemporary India, okay, and that is why this phase from 1969 till 2008, this was the phase of coalition government at federal level, also state level पे अब कोलिशन गवर्नमेंट शुरू हो जाता है आफ्टर 1969. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? तो अब हम बात करेंगे कोलिशन की. पहले नाउ द बिगिनिंग ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, एमर्जेंस ऑफ कोलिशन, यही हमारा टॉपिक है पहला, एमर्जेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया. अब एमर्ज कैसे हुआ कोलिशन पॉलिटिक्स? ओके, 3 जनरल इलेक्शन तक कांग्रेस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इन सेंटर एज वेल एज इन स्टेट्स आल्सो, बट ड्यूरिंग द 4th जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शंस, ओके, 4 general elections of Lok Sabha and state assemblies, okay. So after the death of Nehru and Shastri, Congress party exhausted its mandate. Congress party lost its character and motivation as a party of social and institutional change, okay, and the people were unhappy with corruption and lavish style of party members. लोग बड़े परेशान थे अब कांग्रेस पार्टी से, करप्शन की वजह से, उनके पार्टी के मेंबर्स की लेविश स्टाइल, ओके. तो इसी पे एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक चीज बड़ी ही अच्छी लिखी, जिनका नाम है जरीर मसानी. आपने मे भी इनका नाम सुना भी होगा, जरीर मसानी, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट थे. इन्होंने एक बड़ी ही अच्छी चीज लिखी है. इन्होंने ये लिखा है दैट ड्यू टू कंटिन्यूअस पावर स्ट्रगल विद इन एंड रैपिड इरोजन ऑफ पार्टी डिसिप्लिन, confidence was built up in the anti-Congress wave during 1967 election. इन्होंने कहा कि पावर स्ट्रगल जो कांग्रेस में चल रही थी, हर मेंबर अपने आप को लीडर बनाना चाहता था, कैबिनेट में जाना चाहता था. इससे क्या हुआ, पार्टी की डिसिप्लिन, वैल्यूज, वो सब इरोड होने लगे, और इससे लोगों में एंटी कांग्रेस एटीट्यूड बना. और वो एटीट्यूड कहां पे दिखा? 1967 के इलेक्शन में दिखा जाके, ओके, ये याद रखिएगा, 1967 के इलेक्शन में, ओके. सो 1967 के इलेक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ 1967 इलेक्शन, तो 1967 के इलेक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? ऑपोजिशन पार्टीज सब साथ में आ गई थी, ओके. ऑपोजिशन पार्टीज का ग्रुप बन गया था, ओके. एंड इन 1967 इलेक्शन आल्सो इनिशिएटेड द ड्यूअल एरा ऑफ शॉर्ट लिव्ड कोलिशन गवर्नमेंट. अब यहां से जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, वो 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करेगी गवर्नमेंट. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ओके. अब कोलिशन गवर्नमेंट 1967 से लोकसभा में भी आया और स्टेट असेंबलीज में भी, स्टेट्स में भी आया. एंड कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट वर फॉर्म्ड इन ऑल ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट एक्सेप्ट तमिलनाडु. तमिलनाडु को छोड़ के बाकी हर जगह कोलिशन बना था, ओके. कांग्रेस टू फॉर्म्ड कोलिशन गवर्नमेंट इन सम ऑफ द स्टेट. कांग्रेस ने भी फॉर्म किया था. एक तो बहुत सारे स्टेट्स में क्या आई थी, ऑपोजिशन पार्टीज जीतना शुरू हो गई थी 1967 में, ऑपोजिशन पार्टीज जीतने लगी थी 1967 से, ओके. एंड बहुत सारे स्टेट से जहां पे कांग्रेस ने कोलिशन में गवर्नमेंट फॉर्म की थी. तो इसीलिए कहा जाता है 1967 इलेक्शंस
एज पॉलिटिक्स ऑफ कोलिशन। 1967 के इलेक्शन को क्या कहा जाता है? पॉलिटिक्स ऑफ कोलिशन। ये याद रखिए, इसीलिए कहा गया। समझ में आ रहा है? ओके। और हरियाणा में, हरियाणा जो स्टेट था बन चुका था 1966 में। ओके। और हरियाणा स्टेट बन चुका था, ये याद रखिएगा 1966 में। और हरियाणा में जब इलेक्शन हुए, ओके, तो वहां पे फ्रीक्वेंटली पार्टी बहुत चेंज हो रही थी। तो वहां पे एक स्लोगन दिया गया था हरियाणा में, ओके, और उस स्लोगन का नाम क्या था? आया राम गया राम। ओके, तो ये याद रखिएगा, हरियाणा 1966 में स्टेट बनता है पंजाब से अलग होके। ओके, and in 1966 in Haryana where the defection phenomenon was first initiated and a new term was coined, कांग्रेस गवर्नमेंट में डिफेक्शन था और एक नया टर्म आया वहां से, आया राम गया राम, फॉर द लीडर्स हु फ्रीक्वेंटली चेंजिंग देयर पार्टी। लीडर्स अपनी पार्टी बार बार चेंज कर रहे थे कि जो पार्टी पावर में होगी वही पार्टी ज्वाइन करेंगे। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो कहा जाता है 1967 टू 1970 इन 3 सालों में करीब 800 असेंबली मेंबर्स, 800 असेंबली मेंबर्स दे क्रॉस द फ्लोर। ओके, 800 असेंबली मेंबर्स जो थे उन्होंने बार बार फ्लोर टेस्ट दिए। कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट का जो होता है मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, उसको प्रूव करना पड़ा। बार बार मिनिस्ट्रीज बदल रही थी। यहीं से शुरुआत हुई पॉलिटिकल केओस की, यहीं से शुरुआत हुई कोलिशन की, क्योंकि कोलिशन संभालना बहुत बड़ी बात होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 पार्टीज का कोलिशन संभाला था। Okay, and that is why 1967 elections, it changed the balance of power within the Congress party. Okay, balance of power change हो गया था। समझ में आ रहा है? एंड फाइनली आप देखेंगे पहली बार ठीक 10 साल बाद 1977, मैंने आपको बताया था नेशनल इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी आती है। ओके, इमरजेंसी जयप्रकाश मूवमेंट के बाद 1977 में एक जनरल इलेक्शन होते हैं और उसमें कांग्रेस हार जाती है। एंड कौन सी पार्टी बनती है? जनता गवर्नमेंट। पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी आती है लोकसभा में, जनता गवर्नमेंट। पीएम कौन बनता है? मोरारजी देसाई, पहली बार। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। 77 से 79 तक रहती है जनता गवर्नमेंट। और ये भी याद रखिएगा, ओके, ये भी जो गवर्नमेंट आई थी, बट ये गवर्नमेंट कोलिशन नहीं थी, ये 4 ग्रुप से बनी हुई थी। ये याद रखिएगा, 4 ग्रुप से मिलके बनी हुई थी। 4 ग्रुप कौन कौन से होते हैं? विश्व हिंदू परिषद, ये मैंने उस दिन बताया था बीजेपी कैसे बनी है। विश्व हिंदू परिषद, संस्कार भारती, आरएसएस, बजरंग दल। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। So technically it was not a coalition government because its 4 constituents had agreed to merge and fought the elections on a single manifesto. तो चारों ग्रुप जो थे उन्होंने कहा कि हम साथ में मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, और जनता गवर्नमेंट बनी थी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो यहीं से एरा शुरू हो चुका था, किस चीज का? कोलिशन गवर्नमेंट का, एरा ऑफ कांस्टेंट कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, तो यहीं से शुरू हुआ। फिर उसके बाद 1980 में कौन सी पार्टी आ गई? कांग्रेस पार्टी फिर से आ गई। इंदिरा गांधी फिर से आ जाती हैं। इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है कब? 1984 में। देन इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, सिख बॉडीगार्ड मार देते हैं इंदिरा गांधी को, और इसी बेसिस पे राजीव गांधी इलेक्शन जीत जाते हैं, सिंपैथी वोट्स मिलते हैं। एंड फाइनली 1990s से कांग्रेस का टेन्योर खत्म। अब यहां से तो 1990s का जो दौर है कोलिशन का, 6 महीने की गवर्नमेंट बनेगी, 4 महीने की गवर्नमेंट बनेगी, 4 साल की गवर्नमेंट, ऐसे गवर्नमेंट बनेगी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर गवर्नमेंट, इस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी। समझ में आ रहा है?
तो इसी के बाद जो एरा शुरू होता है 1990s से, उस एरा को हम बोलते हैं एरा ऑफ कांस्टेंट कोलिशन गवर्नमेंट। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बस बता रहा हूं, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, ताकि आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आया आप लिख ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? एरा ऑफ कांस्टेंट कोलिशन गवर्नमेंट, कांस्टेंट कोलिशन government. Okay, and during this period the old stable government by the Congress, there was a return of coalition politics. तो जो 1989 के इलेक्शंस होते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी हार जाती है। ओके, ये याद रखिएगा, इलेक्शंस इन 1989 के इलेक्शंस जो होते हैं, ओके, इट लेड टू द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ओके, डिफीट होती है किसकी? कांग्रेस पार्टी की, ये याद रखिएगा। सो दिस डिफीट ऑफ 1989 इलेक्शंस कांग्रेस पार्टी, इट मार्क्ड द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। दिस ईयर मार्क्ड द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, यस। और यहीं से क्या शुरू हो जाएगा? A new era was started, that is multi-party system, era of multi-party system शुरू हो जाएगा यहाँ, era of multi-party system. So an era of multi-party system began, and this new evolution in the multi-party system, it meant that no single party secured a clear majority. ये मैं पॉलिटिक्स का पॉलिटी का पार्ट बता रहा हूं। मल्टी पार्टी का मतलब क्या होता है? जब ये पार्टी सिस्टम वो बताता है जब इलेक्शन में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली होती है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, मल्टी पार्टी सिस्टम उस एरा को बोलते हैं। तो 1989 से 2014 तक ये एरा चल रहा है, एरा ऑफ मल्टी पार्टी। सभी पार्टी को इक्वल नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे, किसी की भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। ओके, सो दिस मल्टी पार्टी सिस्टम means no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election which held since 1989 until BJP got majority in 2014. BJP अब मेजॉरिटी में आ गई है। बीजेपी अब क्या हो गई है? सिंगल पार्टी सिस्टम हो गई है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो दिस 1990s also saw the emergence of powerful parties and movement. ओके, 1990s में अब क्या होता है? 1990s में अब याद रखिएगा एमर्जेंस होता है पावरफुल पार्टीज का, मूवमेंट्स होते हैं, एंड इन दीज मूवमेंट्स एंड पावरफुल पार्टीज दलित एंड बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल बीएसपी पार्टी बन जाती है, बहुजन समाज पार्टी बाय मायावती, जो कि कौन है? दलित लीडर। समझ में आ रहा है? तो यहां से शुरू होता है। सो विद द इलेक्शंस ऑफ 1989 a long phase of coalition politics began in India, and there have been 9 governments at the center. 9 गवर्नमेंट थी सेंटर में, 9 governments at center, 9 governments, and majority of them either been coalition government or minority government. So in this phase from 1989 till 2014, any government could be formed only with the participation or support of many regional parties. Okay, this can be seen from 1989 government. 1989 में कौन सी गवर्नमेंट बनी थी? नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, NFG, नेशनल फ्रंट। 1996 में कौन सी गवर्नमेंट बनी? यूनाइटेड फ्रंट। ओके, 1997 में कौन सी गवर्नमेंट आई? एनडीए, बीजेपी की गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी लेड कोलिशन था वो। ओके, देन 2004 में कौन सी गवर्नमेंट आई? यूपीए,
कांग्रेस का कोलिशन था। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो ये फेज शुरू हुए, इसीलिए बीजेपी को क्या बोला जाता है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बीजेपी एंड अदर पार्टीज मिलकर बनाती है, उसको एनडीए बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये था पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स के बारे में समझ में आया। अब एक चीज और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, वो है मंडल पॉलिटिक्स। आपको पता होना चाहिए, मंडल पॉलिटिक्स। ओके, अब एक मंडल कमीशन बनाया गया था, ओके, क्योंकि देश में बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा था एंड कुछ लोग थे जो, कुछ कास्ट थी जिनको क्या कहते हैं, प्रमोशन नहीं मिलता था, उनको बैकवर्ड क्लासेस कहा गया। तो उनके लिए कमीशन बनाया गया था 1978 में। ओके, और वो कमीशन का क्या नाम था, मंडल कमीशन। 1978 मंडल कमीशन, इट वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाई? टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस among various sections of Indian society. ओके, और उन बैकवर्ड एरियाज, बैकवर्ड क्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मंडल कमीशन में दिया गया था। बट मंडल कमीशन ये बना तो था इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बट इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। समझ में आ रहा है। बट फाइनली इन अगस्त 1990, जब वीपी सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। ओके, वीपी सिंह की गवर्नमेंट का क्या नाम था, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, NFG, National Front Government. Okay, so this National Front Government decided to implement, okay, one of the recommendation of Mandal Commission. Mandal Commission ने एक recommendation दी थी कि OBC, जो आज आप सुनते हैं ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBCs, मंडल कमीशन ने कहा था कि हमें OBCs को रिजर्वेशन देना चाहिए। और ये चीज किसने इंप्लीमेंट किया, वीपी सिंह की गवर्नमेंट, NFG ने। So this National Front government decided to implement recommendation of Mandal Commission, that is give reservations to OBCs in jobs in central government, okay, and central government companies, कि central government में OBCs को क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन। और जैसे ये डिसीजन इंप्लीमेंट किया, वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है तुरंत। तुरंत कोलिशन पार्टनर अपना कोलिशन वापस ले लेते हैं। और वीपी सिंह के बाद, इसी के बाद अब कौन आएगा, नरसिम्हा राव आएंगे वीपी सिंह की गवर्नमेंट के गिरने के बाद। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। सो दिस डिसीजन ऑफ नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट लेड बाय वीपी सिंह, it sparked agitation and violent protest in many cities of North India. Okay, and Supreme Court in 1992 gave a ruling upholding the decision of government. सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही है। समझ में आ रहा है। तो मंडल कमीशन क्या था, मंडल कमीशन बैकवर्ड क्लास के लिए बनाया गया था, जिनका एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट में बड़ा ही कम रोल रहता है, बड़ा ही कम प्रेजेंस रहता है। इसीलिए मंडल कमीशन ने कहा था कि इनको रिजर्वेशन सीट मिलनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंड गवर्नमेंट जॉब्स में। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो ये चीज था मंडल कमीशन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल, ये याद रखिएगा। सो दिस इज अबाउट कोलिशन पॉलिटिक्स अंडर contemporary development. Okay, and in the next lecture I will be discussing the new economic policy. Okay, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के टर्म्स में पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये याद रखिएगा। एंड ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इज दैट क्लियर टू यू ऑल, ये याद रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।